been my passion and since many years, and everybody is aware about it. All the people who know me. But I actually never gave it that much of a push because I'm doing a lot of things. I'm doing events in a big way, and plus managing Salman and all. There's a lot of work, so I never get the time. But now I've made it a resolution that this year I'm going to record as many songs as I can. Excellent. Yeah. So I think this would be the first single, if we The first say single, so, yes. which is with Desi Tanda, and talking about the melody, the direction, the lyrics. What do you have to say about that? When you finally see your song on the screen. I'm loving it. When I first was called by Shabir to record this, I was really impressed with the track, and I knew it was a sure shot. And I impressed Yasin Bhai because he's the one who really guided me, because I was coming on the mic after a long time. I had sung for a film before this, which I recorded with Vishal Mishra. But since then I've not come in front of the mic, so I think he guided me a lot. But I'm loving it. I love the entire experience. And thank you Desi Music for this lovely opportunity. Lovely opportunity. We hope to hear and get more songs with Absolutely, Desi Tanda and absolutely. otherwise. You will hear a lot of songs. Absolutely. A lot of songs. Anushka, your duet is with Jodie, and both of you sang so beautiful. It sounded so well. There's a very good texture and pronounced your voice. What do you have to say for Lulu? When I first heard the song, I just told नहीं 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 the song. I just told Shabir sir that this is a certified banger. So, and I gave my best, and as did Jody sir and Biglab Bhaiya. So now I just leave it up to the hands of Mahadev, Haran Mahadev, to make this song a blockbuster hit. Thank you so much. When we saw you on screen, we thought we Bacha as a younger brother. Lovely. What do you have to say about the whole project? Your whole experience about it. I was shooting some other thing and Yash Bhai spotted me over there and he was like, oh, you did the Lamborghini rap. First I heard the song from Shabir Bhai, and Shabir Bhai is our backbone when it comes to music. And then they sent me to the shoot of Lamborghini, and then I met Ramji Baji over there, and it was, like he said, he's a genius. He makes things happen, So it was a great experience. I loved it. You'll see more of it coming in. Looking forward to that. Yeah, I'm sure this must be like one fun trip, and you both look lovely together. Could you tell us some moments in the while shooting the song? And of course, we know Ramji is all about cars and beautiful locations and making the video look so chic. What do you have to say about that? When we were shooting together, it was definitely a treat. I kept telling him actually, the way you shoot, and you are like one of the most creative persons, I've met and I've shot with. So he is a perfectionist and he just knows, how to put like a puzzle together. I really want to thank him. Definitely the whole team. The singers, they are so good. हम लोग पता है आज तक के ये गाना गुनगुना रहे हैं. It's like वो होता है ना, गाना बैठ जाता है. It's like that song. So Desi Tadka and everybody who is given this opportunity to me, and especially Rohan, because he got me into this song. So I'm very thankful, and it was an amazing experience. I hope मुझे और मौका मिले रामजी और आप सबके साथ काम करने का. Rohan, of course, needless to say that you look amazing and national, and I must say, chemistry with Ramji is so beautiful. You have done so many songs together, and you all have been super hit, and we're wishing all the luck for this one also. So tell us the whole journey, right from the time you heard this song and to begin with, whenever he calls me, I trust him blindly actually. I know कि कुछ भी होगा वो बेस्ट चीज़ के लिए उन्होंने मुझे कॉल किया होगा. कि हमारा आई थिंक सबसे ज़्यादा इन्होंने भी कुछ 150-200 गाने शूट किए हैं, बट एक एक्टर को उन्होंने रिपीट नहीं करा है. क्योंकि बोल कि यू वर द ओनली वन जिसका उन्होंने 10 गाने करे हैं. तो मैंने तो गाना भी नहीं सुनता हूँ. जब ये कॉल करते हैं तो मतलब आई तो ब्लाइंडली ट्रस्ट हिम. मैं गाना भी नहीं सुनता हूँ, बट गाना तो इतना अच्छा था, वो तो अलग बात है कि सब कुछ परफेक्ट हो गया. इतना अच्छा गाना भी बन के आया का. और तो मतलब इतना ट्रस्ट है कि मुझे पता है कि मतलब इनका कॉल आ रहा है तो सब चीज़ अच्छी होने वाली है. सारी
अच्छी डांस का एक्सपीरियंस आपने डाली है? पहला भी मेरा जो म्यूज़िक एल्बम था इन्हीं के साथ था, और आज मैंने 60 या 70 कुछ कर लिए हैं, वो भी इन्हीं के साथ भी है। और इनका भी कमबैक था, आई थिंक 1 साल के बाद वापसी हो रही थी, तो उन्होंने मुझे याद किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। देसी तड़का के लिए क्या कहेंगे? एक्चुअली न्यू लेबल है और बहुत जल्दी इनके 1 लाख सब्सक्राइबर्स भी हो गए हैं। जिस तरह से मतलब सब लोगों को यहाँ पे इकट्ठा किया है और इतना बड़ा तरीके से गाने को लॉन्च किया, आई एम वेरी 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 इम्प्रेस्ड। और मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा इंतज़ाम इतना अच्छा होगा, तो हम ग्लैड कि मुझे मौका मिला। थैंक यू सो मच बुलाया, और आगे भी हम जरूर काम करेंगे दोबारा से। Would you have to say again, luxury cars and high-rise buildings and skyscrapers, बहुत प्यारा वीडियो है, और देसी तड़का के साथ आपका एसोसिएशन रहा इस गाने में, क्या कहेंगे? I want to thank yes sir, ये मेरा पहला एसोसिएशन है देसी तड़का म्यूज़िक के साथ, and I'm so happy and I would like to thank him and his entire team. He's a beautiful soul, इंसान भी बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैं इनके साथ और अच्छे से थोड़ा जुड़ा हूँ। तो इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस वर्किंग विद यस सर, इन्होंने मुझे शबीर भाई के साथ बहुत टाइम बाद में और शबीर भाई जुड़े हैं अपने काम को लेके। सो एब्सोल्युटली लव द सॉन्ग, एंड जब एक अच्छा ऑडियो आपके पास होता है, व्हेन यू हैव सच गुड सिंगर्स, जॉडी भाई, अनुष्का, बिग लव, बाजी हमारे, सो व्हेन यू हैव अ गुड ऑडियो तो आपका अपने आप मन करता है कि उसके ऊपर यार एक अच्छा विजुअल बनाए, तो आपका विजन और बड़ा हो जाता है। सो आई थिंक आई वुड लाइक टू थैंक दी ऑडियो टीम, शबीर भाई स्पेशली, जिन्होंने ये बहुत ही खूबसूरत गाना बनाया है। एंड जब लैम्बोर्गिनी माइंड में आया, यू नो इट, एंड जो लाइन्स थी इट एब्सोल्युटली स्टेटेड कि ये दुबई में ही शूट होना चाहिए, डाउनटाउन का जिक्र किया था लिरिक्स में। एंड माई फर्स्ट कॉल वॉज डायरेक्टली ही, एंड आई वुड लाइक टू थैंक हिम कि इन्होंने मुझे पूरा फ्रीडम दिया, ना पूछा क्या करोगे, कैसे करोगे, किसके साथ करोगे, कब करोगे। ही सेड रामजी दिस इज योर बेबी। शबीर भाई पे पूरा ट्रस्ट किया, उन्होंने बहुत खूबसूरत ऑडियो बनाया, और जब खूबसूरत ऑडियो मेरे पास था, फ्रीडम था, सो यू नो आई एब्सोल्युटली वेंट बाय कॉलिंग रोहन कि भाई आई वुड डू दिस सॉन्ग विद यू, एंड आई एम सो थैंकफुल टू रोहन। उन्होंने मुझे रियाज से मिलाया, एंड आई गॉट दिस ब्यूटीफुल कास्ट, एंड इवन लव एट लास्ट मिनट, मेरे ख्याल से वीडियो के 2 दिन पहले सर का मुझे फ़ोन आया, यार ही इज़ अ गुड परफॉर्मर, मेरे को जस्ट उन्होंने भेजा, वाला लेट्स डू इट। सो वी हैड हिम ऑन बोर्ड, एंड रोहन टोल्ड मी, यू नो यार अगर यू नो ही विल बी देयर इन द वीडियो, विल ऐड मोर अप। तो उन तीनों ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया है वीडियो में, एंड आई वुड लाइक टू थैंक रोहन, रिया, बिग लव, शबीर भाई, यस सर, एंड आई थिंक इट्स कम आउट फैबुलस, एंड माई इंटायर टीम को इधर है नहीं, so Rahul Paji, John Paji, and my entire Dubai crew for helping me in this video, and thank you Balu for getting us all together for this beautiful day, and thank you everyone for coming today and giving your valuable time and helping us with this beautiful event. लिरिक्स हैं, बहुत ब्यूटीफुल ट्रैक बनाए हैं ये। हमें जब आप बना रहे थे कुछ थॉट्स, कैसे कुछ इंटरेस्टिंग यू नो एनेक्डोट गाने के बारे में आपसे जानना चाहूँगी। सबसे पहले तो जब मैंने कुछ गाने बनाए थे कोई सिंगर के लिए, तो मैंने यस जी को सुनाया, तो बोले मज़ा नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा। तो मतलब क्या चाह, बोले अरे मेरे आर्टिस्ट जो बहुत टीनेज हैं और फ्रेश, कुछ अलग, जैसे ये देखो, ये सुनो। 1-2 बार मैं बुलाया, सुनाया, तो उनको समझ में नहीं आया, राइट सर। तो मैं बोला अच्छा, तो मैं बोला मुझे थोड़ा टाइम दो, मेरे को 2-4 दिन का टाइम दो, मैं सोचता हूँ। तो फिर मैं बोला यार क्या करूँ, और मैं बोला कुछ फ्रेश करते, कुछ नया करते हैं, नए लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि बाकी जो गाने हैं वो जैसे कुछ गाने जो मैं सुना रहा था रोमांटिक थे, थोड़ा मैचुअर्ड थे, वो टाइप के थे, तो कुछ इनको मतलब अर्बन चाहिए था, कुछ फंक में चाहिए था, कुछ एकदम जैसी टाइप में चाहिए था। तो फिर मैंने सोचा कुछ नया करते हैं, और फिर एक जो बच्चे की ज़बान पे, छोटे छोटे बच्चों की ज़बान पे, सबको आम जैसे आदमी चले, और एक ऑटो रिक्शा वाला भी गाय लेम्बोर्गिनी कार, तो मैं बोला चलो इस पे करते। तो मैंने काफ़ी गाने बनाए, और उसके बाद में फिर मैंने जॉडी भाई को बुलाया, बोला आ जाओ जरा कुछ गाने हैं उसको डब करना। तो जॉडी भाई को बुलाया, पूरा गाना डिज़ाइन किया, डिज़ाइन करने के बाद उसको पूरा रेडी किया,
फिर यस भाई पहुँचे और उन्होंने राम भाई से बात करी, तो फिर ये गाना हुआ। गाना पहले मेल था, फिर मेरे दिमाग में आया कि यार इसको फीमेल भी करें, क्योंकि मेल फीमेल होगा तो एक होगा। फिर अनुष्का को हमने वो किया, फिर अनुष्का इसमें ज्वाइन की। उसके बाद फिर हम बोले कि यार अब ये म्यूजिक वन कुछ एक होना चाहिए, कुछ है ना, ब्लू स्काई के नीचे आप बनेंगे 16 से सेल्फी खींचे। मतलब थोड़ा मेरी बेटी जो है शारिया, वो छोटी ये सब चीज़ें देखते रहती है, तो ये देखो ऐसा डैडू ऐसा ऐसा। तो मैं उसकी भी बात सुना, मैं बोला अच्छा कुछ करते। तो मैंने ये पूरे चीज़ को कलेक्ट किया, फिर ये गाना बनाया और उसके बाद फिर लव आया इसके अंदर, फिर गाना रेडी हुआ और फिर राम भाई सुने, राम भाई ने कुछ कॉन्सेप्ट किया। तो मैं सोचा नहीं था कि मतलब मैं बोला यार ठीक है गाना बड़ा हो गया, अब क्या होगा क्या नहीं होगा। मगर यश के साथ काम करने का एक ये फ़ायदा है कि ये भाई एकदम फ्रीडम देते हैं कि भाई जो आपको लगे जैसा लगे बस अच्छा करो। बाकी ये कभी नहीं कि लिरिक्स क्या है, म्यूज़िक क्या है। एक आजकल गानों में एक जैसे एक ग्रुप होता ना, एक म्यूज़िक सिग्नेचर म्यूज़िक डीजे स्नेह, ये एक सिग्नेचर म्यूज़िक वो भी था। तो मैं बोला यार मैं लेकिन कुछ करूँ तो मेरा अपना क्या बचा दोस्त। तो इसके अंदर सारी चीज़ को जहन में रख के गाना बना और गाना बना। उसके बाद राम भाई ने शूट किया और आज गाना देखा तो गाना देख के बहुत अच्छा लगा कि यार कितना अच्छा गाना हो गया। और सारा मेहनत ही पूरी टीम की मेहनत है, सबकी मेहनत है। और जो मोहन बलिया ने पे शूट हुआ बहुत अच्छा इंटरव्यू हो गया, गाने को जस्टिफाई किया है। तो अपनी तरफ से तो हर आदमी बोलेगा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, अपनी दही कोई खट्टी नहीं बोलता है। बट हमने कोशिश की है एक अच्छा गाना बना के आप लोग के सामने। अब पब्लिक का प्यार मिलेगा, पूरे ऑडियंस का सपोर्ट मिलेगा, आप सब लोग के माध्यम से लोग सुनेंगे, शेयर करेंगे, अच्छे कमेंट करेंगे, तो फिर आने वाले नए लोगों को और मौका मिलेगा। फिर आज यश आया देसी प्रथा लेके, कल और 10 लोग आएंगे। आज यश आए कल और 10 आएंगे कि म्यूजिक कंपनी खोलो यार, ये बनाओ गाने सिंगर। तो हम सबको मौका मिलेगा। हो सकता है उसमें भी कोई रोहन आए, कोई रिया आए, कोई लव आए, कोई जॉडी आए, कोई लव अनुष्का आए, कोई शब्बीर अहमद आए, तो हम सबको मौका मिलेगा। तो ये हम सब लोग का, तो अगर सपोर्ट करेंगे, आप सब लोग सपोर्ट करोगे, प्यार दोगे, तो ऐसे एक दूसरे को सपोर्ट ये इनका साउंड, इनका गाना, तो ये बहुत मेहनत की है। ऐसा नहीं, ये लव को भी मालूम है या अनुष्का को भी मालूम है कि ये कितना परफेक्ट रियाज, नोट, एक एक वर्ड, इन सबको मेहनत करके जो इन्होंने किया है। और अभी तो ये गाना अभी इनके यश के साथ काफ़ी गाने हम लोग कर रहे हैं, आ रहा है। फिर हंसराज रघुवंशी जी के साथ इनका गाना आ रहा है। कुछ गाने जो फिल्म का आ रहा है, अभी संजय दत्त की अपकमिंग मूवी है जो उसके लिए इन्होंने गाया है। मतलब ये मेरे लिए कम से कम तो 8-10 गाने गाए हैं और सारे कोलैब में सब बड़े बड़े लोगों के साथ गाया है। तो बड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो मेरे को लग रहा है कि जैसे लव है, लव और अनुष्का और इनकी एक जो है ना टीम बन चुकी है। तो कभी इसमें रघुवंशी मिलेगा आपको, हंसराज रघुवंशी जी मिलेंगे आने वाले प्रोजेक्ट में भी, कभी और कोई सिंगर मिलेगा। तो ऐसे कोशिश है, बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। सो देसी तड़का की फिलॉसफी एज अ म्यूजिक लेवल क्या है, मतलब वर्ड भी एक्सपीरियंस है। लैम्बोर्गिनी के पहले शब्बीर भाई के पास मैंने सबसे पहला गाना रिकॉर्ड किया था हैप्पी हैप्पी, जहाँ से हमारी लेवल स्टार्टिंग हुई थी। तो गाना हमने 2025 में रिलीज़ किया। फिर उसके बाद हम लैम्बोर्गिनी को ऊपर आने बिग लव को मैंने हैप्पी हैप्पी में देखा था, उसका टैलेंट देखा था। तो जैसे शब्बीर भाई ने इस गाने को रिकॉर्ड किया तो मैं रामजी पाजी को उनके पास लेके गए। तो इस ये कैटलॉग है लैम्बोर्गिनी, इसके 2 कैप्टन है शब्बीर भाई और अमित भाई। शब्बीर भाई के पास पूरा फ्रीडम था, इन्होंने जॉर्डी भाई को लाया, अनुष्का को लाया। जब शब्बीर भाई के पास मैं पहली बार गया था तो इन्होंने अनुष्का के कुछ गाने सुनाए, तो मैंने
मैंने उनको पूछा किसकी आवाज़ है, अनुष्का वहाँ पे बैठी थी, बोली इनकी आवाज़ है। मुझे लगा ये 15-16 साल की बच्ची लग रही है, इसकी आवाज़ इतनी बड़ी कैसे हो सकती है। मैं सरप्राइज हो गया। तो मैंने शबीर भाई को बोला कुछ भी करके मेरे को इसका गाना तो इत्तेफाक से वो गाना लैम्बोर्गिनी हो गया। मतलब मेरे को शबीर भाई ने सरप्राइज दिया। जॉर्डी भाई की आवाज़, अनुष्का की आवाज़, और जब बिग लव का मैंने पहली बार हैप्पी हैप्पी में रैप सुना था, मुझे लगा कि ये तो शबीर भाई की आवाज़ लग रही है। लेकिन जब मैं बिग लव को मिला तो मेरे लिए वो सेकंड सरप्राइज था। फिर गाना अच्छा बना, रामजी भाई को लेकर गया मैं उनके पास, उन्होंने गाने को 2 बार सुना, बहुत सारे गाने सुने, उन्होंने एक ही गाने को रिपीट करवाया, मुझे समझ में आया कि ये गाने फिर रामजी भाई को मैंने पूरा फ्रीडम दिया। आपके पास सबसे बेस्ट जो आर्टिस्ट है उनको लेके आप किस लोकेशन पे गाना शूट करना चाहते हैं कर सकते, गाना कंप्लीट करके आप लेके आओ, उसके बाद रिलीज का प्लान। रामजी भाई ने परफेक्ट जॉब किया, शबीर भाई ने बेस्ट गाना बना के दिया है। ये बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन हुआ है और ये देशी तड़का म्यूजिक का सबसे बड़ा लेवल मतलब कैटलॉग है लैम्बोर्गिनी 2025 का। क्या रहेगी और आगे रीजनल लैंग्वेजेस का हम पूरे इंडिया से, जैसे कि रियलिटी शोज होते हैं सिंगिंग के लिए, डांसिंग के लिए, तो जो न्यू कमर्स का टैलेंट है उसके ऊपर हमारा पूरा फोकस रहेगा आगे चलकर। और बीच में हम इस तरह से बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ बड़े कैटलॉग देखेंगे। ऐसा कुछ ना कुछ होता ही है, और जब अच्छा वेदर होता है, अच्छे गाने लगा के सब लोग सॉन्ग लेकर चले जाते हैं, तो आई थिंक ये सबके साथ ही होता है, मेरे साथ ही आई थिंक सबके साथ हुआ होगा। और इवन ये गाड़ी जब हम चला रहे थे, मैं मुंबई में गाड़ी चला रहा था, तब भी बहुत अच्छा वेदर था, तब बहुत अच्छा लग रहा था, तब भी बहुत मज़ा आता है के साथ रोमांटिक ड्राइव वगैरह। उसके बाद थोड़ा सा गुड फीलिंग। ऐसे कंटेंट थोड़ा बहुत रैपर भाई से ज़्यादा मिलते हैं, कुछ ना कुछ एक्सक्लूसिव होता है हमेशा। आप क्या बोलना चाहेंगे? जिन्होंने लिखा है तो उन्होंने कभी किसी को कहा होगा कि रेड शॉर्ट सी ड्रेस पहन के तैयार हो जा, मैं आ रहा रियाज रेड ड्रेस वो खाली लिखते हैं कि गाने में रेड शॉर्ट चाहिए, सब नोटिस किया। एब्सोल्युटली। अगर बात किया जाए आप लोगों से, कहीं अभी देखा जा रहा है कि हम पुराने गानों को उठाकर उनकी मेलोडीज को उठाकर अब हम सभी के बीच में रीअरेंज रिक्रिएट करके ला रहे हैं और ऑडियंस उसे सराहना प्यार देते हैं। एज ए म्यूजिक में आप लोग लेकर आए, जो कि लाइक्स में सब्सक्राइबर भी होने वाले हैं, तो क्या लगता है आपको जो पुराने गानों की मेलोडीज हैं उनको उठाकर लाना, नए तरीके से रीअरेंज रिक्रिएट करना और ऑडियंस मार्केट में लेकर आना, आपको क्या लगता है वो गाने की मेलोडीज को ऐसे ही रहने देना चाहिए, नए गाने लाना चाहिए, या फिर जो चल रहा है वो चलना चाहिए? नहीं सर, उनको वहीं रहने दिया जाए, क्योंकि उनकी तुलना आप आज के गानों से कहाँ करें सर। वो जो मदन मोहन ने, नौशाद साहब ने, राजा मेहंदी अली खान साहब ने, अपना आनंद बख्शी जी ने, मंजू सुल्तान ने, कल्याण जी, आनंद जी, हसरत किशन जी ने, जो लोगों ने काम कर दिया, वो काम क्या आज कोई करेगा सर। उनकी तुलना तो नहीं, वो एक लेजेंडरी चीज़ है, उनको छेड़ा ना जाए। लेकिन हाँ, थोड़ा बीट और वो अरेंज करके लोग कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब ये तो कंपनी को बोलना चाहिए। कंपनी, हम लोग तो नौकर लोग हैं, अगर कंपनी हमें बोलेगी ये करना है तो हम क्या करेंगे, आप रोटी के लिए आ रहा है। बट जो लेजेंड चीज़ है उससे अगर छुआ ना जाए तो ये सबसे अच्छा। जस्टिफाई अगर नहीं कर पाए, आई थिंक नहीं करना। हाँ, नहीं करना। वो गाने को, जो पुराना गाना है उसको अगर रिक्रिएट करके जस्टिफाई नहीं कर पाए, आई डोंट थिंक इट शुड टच। इंस्पिरेशन ले सकते हैं, बट कुछ नया बनता रहना चाहिए। जैसे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कुछ और होते थे, और से फेसबुक से इंस्टा से ट्विटर बढ़ता गया ना, आगे 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 आया आ गया। तो ठीक है ना, नया नया चीज़ जब सुनते रहेंगे, न्यू सॉन्ग सुनोगे, तो देन यू विल कीप ऑन अडैप्टिंग इट। तो सोनिकली काम करते हैं तभी हम नया कुछ ले सकेंगे। ठीक है, इंस्पिरेशन अगर ले रहे हैं थोड़ी बहुत कहीं से, वो भी ठीक है, बट यार उसको छेड़े ना तो ज़्यादा ठीक है, जो लेजेंडरी काम है। तो इफ़ यू कांट जस्टिफाई इट, डोंट टच इट। सिंगर्स ने ज़्यादा नॉलेज है हमको। हाँ, आई थिंक जितने भी लेजेंड्स हैं, जिन्होंने लेजेंडरी गाने बनाए हैं, वो आई थिंक उनकी तुलना कभी किसी से ना करनी चाहिए, ना होनी चाहिए। बट आई एम ऑल्सो अ वेरी ऑडियंस पर्सन। अगर आज की यूथ को कोई गाना पसंद आता है जो रिक्रिएट होता है, इफ दे आर एंजॉइंग इट, व्हाई नॉट? सो आई थिंक एज लॉन्ग एज द ऑडियंस इज एंजॉइंग इट, मतलब किसी ने अच्छा उसको रेंडिशन दिया है, अच्छा म्यूज़िक किया है, अच्छे एड ऑन्स किए हैं, तो एज लॉन्ग एज ऑडियंस एंजॉय करती है, और सबकी अपनी एक पर्सनल चॉइस होती है, मुझे लगता है।
तो एज लॉन्ग एज एक पर्सन उस गाने को नई तरीके से जब बनाया जाता है, अच्छा बनाया जाता है, तो आई थिंक उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। एंड क्योंकि जैसे आज हमने ये गाना किया है, शायद 20 साल बाद कोई लैम्बोर्गिनी को भी रिक्रिएट करेगा। आज इसका जो शबीर भाई ने इतने प्यार से गाने को बनाया है, ऑब्वियसली कभी कल शबीर भाई के साथ ही जुड़ के कोई इसको और बड़ा करेगा तो वाई नॉट, आई थिंक ही विल ऑल्सो बी प्राउड ऑफ इट। बट अगर इसको कोई गलत वे में छेड़खानी करे तो ही विल ऑल्सो बी डिसअपॉइंटेड, और ऑडियंस को ऑटोमेटिक, आई थिंक ऑडियंस सबसे समझदार है, आई थिंक ऑडियंस को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, उनके कान हमसे ज़्यादा अच्छे हैं। हम तो एक गाने को बनाते हैं, हमारा बच्चा होता है, लेकिन मुझे लगता है जो ऑडियंस सिलेक्ट करती है आज का जो जेंजी है, व्हाट दे लाइक, यू नो, इफ दे आर लाइकिंग इट, इट्स देयर, यू आर नॉट गॉन रॉन्ग। सो आई थिंक इट्स अ पर्सनल चॉइस विद एवरीवन, और मुझे लगता है लेजेंड्स और लेजेंडरी लोग, उनकी कभी किसी से तुलना नहीं हो सकती, दे आर अबाव ऑल। बट अगर कोई अच्छा रेंडिशन मिलता है कोई चीज़ का और लोग इन्जॉय कर रहे हैं, आई थिंक तो उन्हें अप्रिशिएट भी करना चाहिए। थैंक यू।